So our topic was strategic management. Strategic management, as the name indicates, as already we have discussed also, that how a successful businessman, what should be the strategy? So plan, program, implementation, result, everything as per strategy. If you can foresee the future, you can have a better strategy. And to have a proper strategy, you must have sufficient knowledge. You must have sufficient knowledge. Practical life, there are number of successful businessmen. One is traditional. One is traditional. So actually, how these all content, input, points comes into picture. So these are nothing. Practical life situation, those who are successful businessmen. If you see, go through, do analysis, you will see that whatever we discuss, these are the content. Whenever a person wants to do something, sure, some vision is there, why he wants to do. Object, how to fulfill the object, goal. Okay. So in this regard, last class we have discussed long-term objectives, profitability, meaning some business, their target is profitability, maybe initial 1 to 3 years loss. They are ready for that. That is profitability. Productivity. So in long run, multiples going on. Competitive position, you are in market competitors are there, enemies are there. One word is enemy, one is competition. Better word is competition. We should avoid the word enemy. Enemy action is a different thing. Enemy action means destroy others. Enemy action. It is not that. Competition means they will apply their mind, you have to apply your mind, and competing maybe price competition, quality competition, ये सब होता है competition. Employee development, employee relations. In business, for long term sustainability, employee confidence is most important. Employee having confidence on employer, employer having confidence on employee. Nowadays, business, we have concept of employer means honor like behavior. Honor like, आप कैसे समझोगे इसको? सपोज आप किसी शॉप में गए, सेल्समैन है, आप उससे बात कर रहे हो, वो आपसे बात ऐसा कर रहा है जस्ट लाइक ऑनर. Just like he is not honor, but he is talking just like honor. So that is honor like behavior. जैसे ऑनर से आप बोलते हो ना, थोड़ा इसका प्राइस कम कर दो, थोड़ा इसको चेंज कर दो, थोड़ा इसको इम्प्रूव कर दो, वो बोल रहा हम करा देगा, आई विल डू इट. ये सब डायलॉग कौन देता है? ऑनर. कोई डिसीजन चेंज हो रहा है थोड़ा, वो बोला आई विल डू इट. ये सब कौन बोलता है? ऑनर. एम्प्लॉय नॉर्मली क्या बोलता है? हमको परमिशन लेना होगा, हमको बात करना होगा, हम पूछ के बताएंगे, ये सब होता है ना. बट ऑनर लाइक बिहेवियर बोल रहा आई विल डू इट. व्हाट माय पॉइंट? सो इट मीन्स employee has confidence over employer that whatever decision I will take, my employer will accept, right? Or employer also having confidence that employee is there, he will look after my business. Okay? Again, technological leadership. Nowadays, your traditional way of doing things will not work. You have to be improved. That is technological development and public responsibility.
You are doing business with public mass. So you have some duty responsibility on public. So that you have to take care. बोलो. सर टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप का मतलब आज के डेट में जो आगे रहेगा वो ज्यादा सक्सेस होगा. सपोज सैमसंग, एप्पल, तो ये लोग क्या किया, नोकिया को छोड़ दिया. नोकिया बैक हो गया. क्यों बैक हो गया? ये लोग और रिसर्च डेवलपमेंट करके उससे आगे निकल गया. दूसरा बात नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, वो कर रहा है लेकिन इसका 10 टाइम्स ज्यादा कर रहा है. ये लोग ज्यादा निकल जाएगा. वे ऑफ डूइंग बिजनेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट. एक समय में अमेजोन था ही नहीं, फ्लिपकार्ट पहले आया बाद में, लेकिन सक्सेस अमेजोन भी ज्यादा हो गया. वाई? वो लोग और रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है. ओके, ये सब क्या है? सब टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप. माने आप जो करने जा रहे हो उसके आगे का वो कर रहा है. समझ गए? प्रॉब्लम क्या होता है? इंडिया का भी प्रॉब्लम है. वी ट्राई, व्हाट दे आर डूइंग वी विल डू. वी आर डूइंग, बट व्हेन वी डू वी सी दे आर गोइंग मोर अहेड. और आगे चला गया. समझ गए? तो और आगे निकल गया. इट्स अ रेस. It's a race. Those who are ahead in technology, they are in a better position. इसके अंदर में देखो, आपका मोबाइल वगैरह में नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है ना? सो ये सब में क्या हुआ? वोडाफोन डे बाय डे बैक जा रहा है. हो सकता है बाद में एक्सटिंक्ट, गायब भी हो जाएगा. इसका भी हिस्ट्री है. शुरू में यही था, बाद में बाकी लोग आया. वो लोग टेक्नोलॉजिकल ज्यादा एडवांस हो रहा है, ये बैक होते जा रहा है. मे बी 5-10 साल बाद ये नाम भी भूल जाएगा. ठीक है ना? ऑलरेडी 5-6 नेम्स चेंज हो गया. एक समय में हिसार था, फिर कमांड हो गया. ऐसे ऐसे करके नाम चेंज होता गया इसका. समझे? अब क्या है? अभी VI है, लास्ट में ये भी जाने वाला है. समझ गए? जाने वाला. और भी साइन क्या है? जैसे शेयर प्राइस 400, 500, 1000, अभी 10 रुपया में आ गया है. इसका मतलब क्या है? नियर अबाउट डेथ. माने फ्यूचर नहीं है. जैसे ही पता चला इसका फ्यूचर नहीं है, तो क्या हुआ? प्राइस गोइंग डाउन. फाइनली क्या होगा? एक्सटिंक्ट, गायब हो जाएगा. ठीक है? तो आज के डेट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज बेस्ट. चलो फिर से. ओके, write down long-term objectives represent the result expected from pursuing certain strategies. ठीक है? सो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट में क्या है? रिजल्ट एक्सपेक्टेड, फाइनली क्या चाहिए हम लोग का, और हाउ परसुइंग सर्टेन स्ट्रेटेजी. हम लोग कुछ स्टेप्स लेते हैं.
प्रोसीड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, फाइनली अपने को रिजल्ट चाहिए, कीपिंग इन माइंड लॉन्ग टर्म. देन अगेन शॉर्ट टर्म objectives. This is sign of long term objectives. हम लोग का प्लान है 10 साल में टॉप में पहुंचना है. तो एवरी ईयर क्या है, ये तो लॉन्ग नहीं है, ये तो शॉर्ट है. तो एवरी ईयर का डेटा एनालिसिस रिजल्ट से हम लोग को पता चल जाएगा वी आर मूविंग टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म और नो. यस. सो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, by this you can have a sign that we are in the right direction, we are moving towards our objectives, right? So long term objectives, sign, how we get short term. तो short term सब मिला दो तो लॉन्ग टर्म जैसे इकोनॉमिक्स में होता है ना, 150 शॉर्ट टर्म, सबको कर्व बना दो, देखो पता चलेगा लॉन्ग टर्म में आगे. तो यहां भी क्या है, हम लोग का टारगेट है. टारगेट में क्या होता है, सपोज लास्ट में हम लोग का टारगेट है ऑब्जेक्ट अचीव्ड, उस समय पता चलेगा हम लोग को 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, हो सकता है. लेकिन 10 साल में हम लोग पहला यह टारगेट था 500 करोड़ लॉस, 200 करोड़ लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, 100 करोड़ प्रॉफिट, 400 करोड़ प्रॉफिट, 800 करोड़ प्रॉफिट, 2000 करोड़ प्रॉफिट. तो एवरी ईयर का एक टारगेट है ना, whether we are achieving as per our plan program or not. If it is as per plan program, then we can say we will achieve the long term. क्या समझे? What is risk? लॉस वाला काम तो हो गया, जब प्रॉफिट वाला काम आया बोला कहां गया, गायब हो गया सब. समझ गए? इसका बेस्ट एग्जांपल एक है, यू नो बायजूस. बायजूस ये सब क्या होता है, दे मेक प्लान प्रोग्राम, ह्यूज एक्सपेंडिचर. प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक मनी है, इक्विटी इशू किया, पब्लिक से पैसा लिया, लगा दिया, डूब गया. पब्लिक फेथ किया शायद हो जाएगा, पैसा किसका डूबा, पब्लिक का. नाम उसका डूबा, पैसा पब्लिक का डूबा. एक होता है नाम डूबना और एक होता है पैसा डूबना. पैसा किसका डूबा, पब्लिक का. नाम उसका डूबा जो मैनेजमेंट था. दोनों में अंतर है. उसका पैसा नहीं डूबा क्योंकि पैसा तो पब्लिक से था. समझ गए? अलग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से हम लोग को साइन मिल जाता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का. ओके, नाउ राइट डाउन वैल्यूज. ethics, fairness, ethics, टाटा ग्रुप, रतन टाटा. एक्चुअली रतन एंड टाटा करके नाम है. तो एनीवे, ओके,
In this regard, what we see, Tata Group take care of this. They have some ethics. They have some fairness. फेयरनेस का मतलब होता है जो बोलेगा वो करेगा, इथिक्स के आगे झुकेगा नहीं। ठीक है, काम करने का कुछ सिस्टम होता है। आप ऐसे सोचो, इथिक्स क्या है? आप किसी दुकान में गए, बोले सामान बेचना है, थोड़ा डिफेक्ट माल सब रहेगा, पता नहीं चलेगा, बेचना, प्रॉफिट ज्यादा होगा। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इथिक्स हुआ। बहुत सा बोलेगा, बोला प्रॉफिट है ना, अच्छा, हमको क्या मतलब है, दे दो, बेचेंगे। यहां पर क्या हुआ? इथिक्स कॉम्प्रोमाइज। इथिक्स, इसमें फिर से टाटा ग्रुप में सपोज कार सेल कर दिया, बाद में पता चला ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सपोज 10,000 कार बेच दिया, बोला एक काम करो, सभी कार को कॉल करो, फ्री में सबको रिप्लेस करो। कोई पार्ट खराब है, बोला पुराना निकाल के नया लगा दो, कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री। सभी सेलर को, बायर को इन्फॉर्म कर दिया, आप अपना गाड़ी लेके आओ, आपका ये पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में से हम लोग रिप्लेस करेंगे, वी एक्सेप्ट आवर फॉल्ट। पता चला इस काम को करने के लिए उसको 20 करोड़ रुपया का लॉस होगा, बोला कोई बात। कैसे समझे? इससे वैल्यू बढ़ा या घट गया? बढ़ा ना। पब्लिक का फेथ, इसको बोलते हैं वैल्यूज। जैसे मान लो टाटा ग्रुप पर, रतन टाटा पर कोई क्लेम किया, बोला वो 5 करोड़ रुपया मेरा चोरी कर लिया है, तो दूसरा बोलेगा क्या बोलता है, हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये अच्छा चीज है ना, खराब है? और किसी दूसरा बिजनेसमैन का नाम लिया, बोलेगा हो सकता है, बोलता है ना। पॉलिटिकल लीडर किसी का भी बोलो ये ऐसा क्या, बोला हो सकता है, लेवल लगा हुआ है। लेकिन उसमें भी कुछ पॉलिटिकल लीडर से उसका नाम लेता, बोलता नहीं वो नहीं करेगा, करेगा भी तो इनडायरेक्टली करेगा। कुछ का नाम में बोलेगा डायरेक्ट करेगा कुछ का नाम लेगा इनडायरेक्ट करेगा। फिर कुछ ऐसा ऐसा होता है जिस पे बोलता है ना, हो सकता है बेवकूफी किया होगा, माने उस हम लोग के दिमाग में वो लीडर बेवकूफ है। अलग अलग कंसेप्ट है ना, यही सब वर्ड होता है वैल्यूज। वैल्यूज का मीनिंग समझ में आ रहा है? ठीक है ना। वैल्यू देना, ठीक है, माने आप अदर्स को क्या वैल्यू देते हो, वो आपको क्या वैल्यू, दैट इज व्हाट मीनिंग वैल्यू। इथिक्स का मतलब होता है आप कोई भी काम करोगे, लॉ के बाहर नहीं करोगे, लॉ के अंदर भी है, अगर आपको लगता है ये गलत है तो वो भी आप नहीं करोगे। फिर वर्ड लॉ के अंदर में है, लेकिन आपको लगता है ये गलत है, आप नहीं करोगे। गवर्नमेंट बोला इलीगल इनकम पर टैक्स दे दो, छोड़ देंगे, जाओ, पॉसिबल? टैक्स चाहिए, आप करोगे ये? तब क्या आया बीच में? इथिक्स आ गया। क्लियर? इट इज इथिक्स अगेन। देखो, a few common examples of values are
integrity, trust, accountability, humility, innovation, and diversity. So, integrity, trust, accountability, humility, innovation, diversity. देखो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए इंटीग्रिटी क्या होता है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, फेथ, ये वैल्यूज है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हर चीज का हिसाब किताब है, समझ गए? नहीं बोलता है ना, एक एक रुपया का हम हिसाब दे देंगे, तो क्या है अकाउंटेबिलिटी। एक होता खाली बोलने पे नहीं है, सच में। ह्यूमिलिटी, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमिलिटी, ह्यूमन बीइंग। अब फिर इसमें लगेगा थोड़ा सा और मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा दया आ जाना, चलो फिर से इसको और समझा रहे हैं। मान लो आपके पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा आया, एक होता है काटो खा जाओ और एक होता है नहीं नहीं ये सब, तो मैंने क्या आप में दया आ रहा है? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकता है। ये क्या है? ये ह्यूमिलिटी हुआ। लेकिन सेम थिंग आप टाइगर और लायन के सामने में रख दो तो ये सब सोचेगा वो, तो इसका मतलब वहां ह्यूमिलिटी नहीं है, ठीक है ना? मैंने तो है ना। अच्छा, बहुत सा क्रिमिनल लोग होता है, कुछ कुछ कास्ट में प्रॉब्लम आता है, वो लोग सीधा काटो और खाओ, ह्यूमिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, समझ गए? तो वर्ड क्या कम कम आता है? ह्यूमिलिटी। हो ना होगा। बिजनेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी करोगे, क्या बोले हम, अंतर आएगा ना। अब आप बोले मेरा तो बिजनेस ही नॉन वेज है, हम सोचेगा तो बिजनेस क्या करेगा, फिर हम क्या बोले, समझ गए? सो नाउ here again you have to divide category, you have to choose। एक आदमी वेजिटेरियन बिजनेस करता है, एक नॉन वेज बिजनेस करता है, आपको बोला दोनों में से एक चूज करो, और आप ह्यूमन वाला बात आ रहा है। ह्यूमिलिटी माने मारना काटना ये वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, खराब है, जो भी, आप क्या चूज करोगे? तो यहां पर डिसीजन चेंज क्यों हो रहा है? सो ह्यूमिलिटी माने आप राइट वे से कैसे सोचते हो। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि मनी इज एवरीथिंग, पैसा के लिए आप कुछ भी करोगे बोलोगे बिजनेस, ऐसा नहीं। ओके, इनोवेशन, न्यू थिंग्स। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज पहले नहीं है, नया चीज है। व्हाट कम्स? इनोवेशन। सर ये पूरा बिजनेस वर्ल्ड का वाला बात कर रहा है इनोवेशन का। फिर से when we talk about business strategy, growth development,
आप किसका करना चाह रहे हो? बिजनेस का ही तो करना चाह रहे हो। जैसे हम बोल रहे थे कि पार्टिकुलर एक बिजनेस का पूरा बिजनेस वर्ल्ड का। फिर से आपका जो स्टडी होता है ये पूरा बिजनेस वर्ल्ड लेके चल रहा है कि नहीं? यस सर। तब आपका लाइन डिफरेंट हो सकता है, उसी में कुछ नया इनोवेट करो, डू सम। अब देखो इनोवेशन सब क्या है, मान लो रूफ कुछ लीकेज हो गया, तो लीकेज को सील करने के लिए सब अपना अपना नया नया स्टाइल से बना रहा है। कोई बोला सीमेंट लगा दो, कोई बोलेगा ये लगा दो, कोई बोलेगा ये लगा दो, पेंट कंपनी वाला बोला ये लगा दो, कोई नया बनाया बोला इनोवेशन विथ 10 years गारंटी, अदरवाइज मनी रिटर्न। बाकी सब बोल रहा है, जब 10 year वारंटी का बात आया तो बैक कर गया, बोला लगाएंगे, काम नहीं किया तो पैसा वापस, बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, और एक बोला कि रिटर्न, माई न्यू प्रोडक्ट इज देयर, इट हैज बीन इनोवेटेड, ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ है, तो अहेड हो जाएगा कि नहीं? यही सब होता है इनोवेशन। आप 10 साल दिए, दूसरा आया बोला 25 साल का, अब वो बोला मेरा और भी बढ़िया माल है। कैसे आप मार्केट में टिको? इनोवेशन। समझ गए? तो ये सब क्या है? नया नया ट्रिक टेक्निक है। कोई बनाया, बोला आप पेंट लगाओगे नजर आएगा, मेरा पेंट लगाओगे नजर भी नहीं आएगा, जा इनोवेट। पॉसिबल? पहले घर में व्हाइट वॉशिंग होता था, आजकल डिस्टेम्पर होने लगा। बाद में तीसरा आया, बोला मेरा है, इसमें गंदा करो और धो लो, धो लो, पानी डालो, सफा, कुछ नहीं है, नो दाग नो धब्बा, होता है ना। फिर कुछ इनोवेट किया, बोला रॉयल टच है, आप हो गरीब लेकिन इसको लगा लो, आप अमीर लग जाओगे। पॉसिबल? तो अब लो, मनी सेकेंडरी आ रहा है, मनी सेकेंडरी आ रहा है। अब क्या है? बोला सेम प्राइस बेटर क्वालिटी, फिर अंतर आ गया। क्या समझे? ये सब क्या है? ये सब पार्ट है। आई थिंक गॉट इट। ठीक है। एनीवे, वर्ड मीनिंग इनोवेशन समझ में आया? इनोवेशन मतलब ऐसा चीज जो पहले नहीं था। अब छोटा सा इनोवेशन है कि बड़ा इनोवेशन है, दैट इज डिफरेंट। डाइवर्सिटी, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन। टाटा वाला कार भी बना रहा है, ट्रक भी बना रहा है, साथ में नमक का भी डील हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन से बेनिफिट क्या है? योर रिस्क विल मिनिमाइज। आपका बिजनेस है ना, 10 प्रोडक्ट है, एक में प्रॉब्लम आया 9 तो चलेगा, 2 में प्रॉब्लम आया 8 तो चलेगा, ठीक है। कुछ नहीं, 1-2 बिजनेस थोड़ा पार्ट ऑफ से वॉच भी बना रहा है, प्लस तनिष्क भी है, समझ गए? सेगमेंट कर दिया। डिसकंटिन्यूएशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये मार्केट है। आप अच्छा हो, नो डाउट, बाजार में और भी अच्छा आ गया, कंपटीशन आ गया, फिर मेरा कहना है डूब गया, तब भी ठीक है, डूब गया तो उससे क्या हुआ? बिजनेस तो बंद नहीं हुआ ना, मेरा बाकी प्रोडक्ट तो है, ठीक है। अब क्या होता है? वाई यू आर आउट ऑफ मार्केट? श्योर समथिंग एरर, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा,
मिस्टेक क्या होता है, आप मार्केट का जो रिक्वायरमेंट है, नेचर है, यू आर गुड इज नॉट सफिशिएंट, आप अच्छा हो इज नॉट सफिशिएंट। मार्केट, Market pulse of the market. आप अपने से तो नहीं कमाओगे ना, आपको मार्केट से कमाना है। मार्केट का जो मूवमेंट है कैसे हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन, सो इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। ओके, ऑब्जेक्ट सबका एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो, वैल्यूज ऑफ HDFC बैंक, वैल्यूज ऑफ HDFC, ठीक है, एक्सेलेंस, कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट लीडरशिप, पीपल, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सो अब HDFC का एक टारगेट है एक्सेलेंस। एक्सेलेंस का मतलब क्या होता है, विल बी बेस्ट इन बैंकिंग। एक्सेलेंट, जैसे बोला ना, कैसा है, बोला एक्सेलेंट बैंक। एक्सेलेंट बैंक क्यों बोले एक्सेलेंट बैंक है, तो आप गए, बैंक का लुक अच्छा है, पर नीट एंड क्लीन, बात समझो यहाँ पर, नीट एंड क्लीन है। आप गए, आपको सर्विस दिया, सर्विस कम से कम पानी पूछने वाला कोई था, एक है खुद पी लो और एक है लाके दे दिया, अंतर है। कहीं पे गए, पता चला टीवी ऑफर कर रहा है, ये सब ऐड कर रहा है, किसमें ऐड कर रहा है, वैल्यूज में। इससे कुछ होना नहीं है, मैंने आपको वार्म फीलिंग दे रहा है। आप गए, पूछा क्या काम है, बोला प्लीज सिट डाउन, आपको बैठाया, बोला चाय पीजिए, पानी पीजिए, आपका काम हो गया, अच्छा पॉसिबल। अभी वो सब होता नहीं है, ठीक है ना, अंतर है। So what? Excellence. Here interesting is if you satisfy one, you are satisfying automatically 4, 5. जैसे एक्सेलेंस हो गया तो कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस क्या है, कोई भी कस्टमर आए, फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट। अभी क्या होता है प्राइवेट बैंक में, नहीं इसमें गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ तो लोग कस्टमर है लास्ट प्रेफरेंस, पहले एम्प्लॉय में प्रेफरेंस है, ठीक है। सो कस्टमर फोकस, तो कस्टमर फोकस का मतलब कस्टमर आया, व्हाट कस्टमर इज आस्किंग, हियर गिव द सॉल्यूशन, कस्टमर फोकस, ठीक है। प्रोडक्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट लीडरशिप क्या होता है, चलो बैंक का ही ले रहे हैं हम लोग। हाउसिंग लोन इज अ प्रोडक्ट, लैप इज अ प्रोडक्ट, पर्सनल लोन इज अ प्रोडक्ट, राइट। ये प्रोडक्ट है, सामान का मतलब नहीं है कि कंप्यूटर बेच रहा है और ये बेच रहा है। सेगमेंट, बैंक के लिए क्या, यही सर्विस एक प्रोडक्ट है। सर्विस अब क्या, उसमें कैटेगरी है,
जैसे आपको बोला हाउसिंग लोन कौन सा बैंक अच्छा रहेगा, बोला इस बैंक में चले जाओ, ये अच्छा रहेगा। वाई, बोला बेस्ट है, कम हरासमेंट, टाइमली काम हो जाएगा, एक्सपर्टाइज। ये क्या हुआ, लीडरशिप। मीनिंग क्लियर? किसको लीडरशिप? सपोज होम लोन में सपोज बोला कि HDFC बेस्ट है, या बोल दिया LIC बेस्ट है, तो अब क्या हुआ, वाई बेस्ट। ये वर्ड कहां से आया, बेस्ट है, बाकी क्या खराब है, क्या लोन नहीं देता है, सब देता है, लेकिन इसका सर्विस फास्ट है। आजकल लीडरशिप में क्या हो रहा है, होम सर्विस शुरू हो गया। पहले क्या होता था, आपको बैंक जाना है, आजकल बैंक बोलता है मत आओ, हम आपका पास आ गए। राइट? वाई? अहेड। आप बोले बैंक में आ रहे हैं, आने में 1 वीक लगा दिया, वो बोला हम आ रहे हैं 1 घंटा में हाजिर हो, अहेड हो गया ना। इसको बोलते हैं लीडरशिप। ठीक है? तो आप प्रोडक्ट लिए, उसके अंदर में आपको लीडरशिप करना है, मैंने दूसरा करे उसके पहले आप काम करके निकल जाए। ठीक है? पीपल, यू आर डीलिंग विथ पीपल, पर्सन, कस्टमर इज ऑल्सो पीपल, one is your customer, one is others. So give value to people, give value to। कोई अकाउंट खोलने आया, अभी अकाउंट खोला नहीं है, अकाउंट खोला नहीं है, इज ही योर कस्टमर? नो, अभी कुछ नहीं है, लेकिन आपको वैल्यू देना है उसको। आप वैल्यू दोगे तो वो आपका कस्टमर भी बन जाएगा, अकाउंट भी खोल लेगा, पैसा भी रखेगा। सस्टेनेबिलिटी, और सब ठीक रहा, आप सस्टेन भी करोगे, टिकोगे भी, आगे भी बढ़ोगे। ओके? सो nowadays way of doing banking is totally changed. Okay? So what happens, they give training to employees, which में वर्कशॉप होता है। क्या होता है? वर्कशॉप में क्या होता है, यही सब सिखाया जाता है एम्प्लॉय लोग को। दैट कोई कस्टमर आए तो कस्टमर का बात पहले सुनो, ये नहीं कि आपस में ही भिड़ा हुआ है बात कर रहा है, होता है ना, समय ही नहीं है आपका बात सुनने का, ऐसा नहीं। दीज आर कॉमन प्रॉब्लम, एम्प्लॉय खाली गप कर रहा है। तो गिव वैल्यू टू कस्टमर, तो ये क्या है, इसी तरह से जैसे बैंक का, एक बैंक का है, नॉर्मली बैंकिंग सेगमेंट सबका सेम रहेगा। अगेन देर आर सम, बोला इंटरेस्ट रेट कम बेसी कर दो, कस्टमर ऐसे ही आएगा, माथा नहीं लगाना है। तब क्या हुआ, कस्टमर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मास कस्टमर, क्लास कस्टमर। प्राइवेट बैंक क्या कर दिया, बैंकिंग क्लास कस्टमर। जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है सबका क्लाइंट प्राइवेट बैंक से लिया। प्राइवेट बैंक में गए, बोला चेकबुक इतना रुपया, वो लोग बोला फ्री। बोला सर्विस, बोला आपको जैसा पैसा जमा करना है, आदमी भेज देगा, वो जमा कर देगा। आपको पैसा चाहिए, जाके आपको पहुंचा देगा। चेकबुक चाहिए, आना नहीं है, आपका घर में जाएगा। बट आई नीड योर अकाउंट। पॉसिबल? Nowadays
गवर्नमेंट बैंक सपोज 40 साल पुराना बैंक, पूछोगे हाउ मेनी करेंट अकाउंट्स यू हैव, बोलेगा 300। रनिंग में कितना है, बोलेगा 25। 300 में चलता कितना है, बस 25, और बाकी बस ऐसे ही मिनिमम बैलेंस है। समझ गए? प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये लोग से ब्रांच कितना पुराना है, बोला 2 साल। करंट अकाउंट कितना है, 500। बोला रनिंग कितना है, 400। अंतर आ गया। प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक आप गए, रस, कोई हाफ पैंट पहन के, कोई लुंगी पहन के, कोई लाइन लगा हुआ है सब। प्राइवेट बैंक में गए, आदमी नजर नहीं आ रहा है। बिजनेस, बोला आज 10 करोड़ रुपया डिपॉजिट विड्रॉल हुआ। गवर्नमेंट बैंक क्या हुआ, बोला आज 13 लाख रुपया आया गया। बोला भीड़ इतना था, बोला बस ऐसा ही है, 100 200 500 1000 आज डालता है, कल निकाल लेता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। सर वन क्वेश्चन, बोलो। सर प्राइवेट बैंक है तो तुम्ही ज्यादा बताओ मार्केट शेयर गवर्नमेंट बैंक है। फिर से, एक होता है मास, एक होता है क्लास। गवर्नमेंट का पैसा सब एसबीआई में जा रहा है, अब गवर्नमेंट का डिसीजन है क्यों जाता है, गवर्नमेंट बिहाइंड है ना। आपका एक दुकान है, आप अपना दुकान को प्रीफर करोगे ना दूसरे का। अब अपना अच्छा है या खराब है अपना, इसका क्या सॉल्यूशन है? कुछ ठीक हुआ? क्या समझे? एक होता है मास और एक होता है क्लास। क्लियर? और प्राइवेट बैंक में आपका फ्रीडम ज्यादा है, गवर्नमेंट बैंक में फ्रीडम कम है। रूल्स रेगुलेशंस ये वो, आपका पावर ही नहीं है, जो रूल बना दिया खत्म। प्राइवेट बैंक्स में दे हैव सम पावर टू अथॉरिटीज, सम परमिशन गिवन, और आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम बेसी कर सकता है। पावर, गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर खुद ही बोलता है हम पावरलेस है। चाय भी पिलाएगा तो बोलेगा हमको थोड़ा परमिशन लेना पड़ता है। समझ गए? मतलब विद इन लिमिट रहना होगा। अंतर है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ गया, वन वर्ड इज इंटेंट एंड वन वर्ड इज वैल्यूज। इंटेंट में सब कुछ है, वैल्यू एक पार्ट है, बट विच वन इज मोर ब्रॉडर? इंटेंट का कवरेज बहुत ज्यादा है, उसके अंदर वैल्यूज भी है, बट वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। आप वैल्यू दोगे अपने आप बाकी भी काम होने सकेगा। ठीक है? नाउ स्ट्रेटेजिक, levels in organization. Now, say example Patanjali. सर इसका मीनिंग क्या है? स्ट्रेटेजिक लेवल एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हायर अथॉरिटी, उसके नीचे का अथॉरिटी, उसके नीचे का अथॉरिटी, अलग अलग लेवल है ना, अलग अलग। ठीक है? नाउ हेल्थ केयर,
FMCG, organic foods, medicinal oils and herbs and others. ओके, अलग अलग डिवीजन हुआ. नाउ लेवल्स, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल. सब चलेगा, करेंगे, बता रहे हैं सब. ठीक है. जनरल मैनेजर्स, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, डिवीजन, फंक्शनल, बिजनेस फंक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सेट्रा. Now, the first comes corporate level. कॉर्पोरेट लेवल. कॉर्पोरेट लेवल का मतलब हो गया एकदम हेड ऑफिस, बिग डिसीजंस, बिग. उसके बाद क्या करता है, वहां से अगर अपने लोग का सपोज 5 प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर, FMCG मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑर्गेनिक फूड्स, मेडिसिनल, तो सबका एक एक हेड बना देगा, सबका एक एक हेड बना देगा. पॉसिबल दैट योर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर आंसरेबल, मैंने वो आंसर देना होगा उसको. आंसर में मेन फोकस क्या होता है, फाइनली प्रॉफिट. सो एज ही इज आंसरेबल, वो तो फिर ट्राई लेवल बेस्ट करेगा. ठीक है. लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. कॉर्पोरेट लेवल क्या हो गया, हेड ऑफिस. कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल पूरा डिवीजन वाला हो गया काम. कॉर्पोरेट में डिसीजन हुआ, आप बिजनेस 5 प्रोडक्ट का कर रहे हो ना, 10 प्रोडक्ट का कर रहे हो, तो ये बिजनेस है. पर्टिकुलर एक का आपको मैनेजर बना दिया, डिवीजन का बोला ये अब आपका ड्यूटी है, यू आर जनरल मैनेजर. एक होता है ब्रांच मैनेजर और एक होता है जनरल मैनेजर. तो जनरल मैनेजर क्या हो गया, पूरा एरिया का हो गया. मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट बेचना है, करना है, आपका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है.
आजकल क्या होता है, ये जो जॉब बोलते हैं ना हम लोग, तो जॉब दूसरे एक और डिजाइन होता है जॉब का। आप गए, बोले क्या करना है, बोला मार्केटिंग, कितना सैलरी चाहिए, बोला 2 लाख रुपया पर मंथ। बोला गुड, 2 लाख आप डिमांड कर रहे हो, इट मीन्स यू आर एफिशिएंट। आप ऑर्गेनाइजेशन को कितना कमा के दोगे, चलो आपको ये जॉब मिल गया। बोला बुद्धिमान है, पूरा मार्केट संभाल लेगा, ठीक है डन, 2 लाख। आप ऑर्गेनाइजेशन को कितना दोगे लाके, कितना कमा के लाके दोगे, क्या बोलोगे? 2 लाख से कम, 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा, कितना बोलोगे? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़? 1 करोड़ लाके। बोला अभी पेपर साइन करो, इसको अपॉइंट कर दो, 2 लाख महीना का दे देना और 1 करोड़ ये लाके देगा हर महीना। 2 लाख, 1 करोड़ कमाएंगे, 2 लाख दे देंगे। प्रॉब्लम कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट में? कोई बार्गेन करेगा? बाद में महीना खत्म हुआ, सैलरी 2 लाख, 1 करोड़ आया, बोले इस बार तो कुछ नहीं आया। तब फंस गए ना चक्कर में, समझ गए? ये सब क्वेश्चन मार्क है। कुछ नहीं, एकदम पोलाइटली आजकल होता है। तो टर्म्स कंडीशन पहले लिखवा लिया था, 2 लाख लेगा, 1 करोड़ ला के देगा। तो साइन उन करके एकदम 2 लाख का सैलरी पार्टी भी मना ली। बाद में पता चला कहां फंस गए। समझ गए? आजकल बिजनेस का, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेसमैन और सर्विसमैन फंस गया। तब क्या होता है, टर्म्स कंडीशन सेट कर दिया, समझ गए? आप 1 करोड़ बोले, 50 लाख भी अगर लाके दे दिए तो जॉब बच जाएगा आपका। अगर आप 2 लाख से भी कम लाके दिए तो जॉब गया, राइट? एनीवे, मतलब चलो मीनिंग समझ में आया। तो कॉर्पोरेट लेवल में क्या, वो लोग डिसीजन लेता है, रूल्स रेगुलेशन सेट करता है। फिर डिविजनल लेवल, बिजनेस लेवल, लास्ट में फंक्शनल, लास्ट पॉइंट हो गया फंक्शनल। जैसे मार्केटिंग है तो आप लास्ट में कहां कहां माल मिलता है लिखते हैं ना, एड्रेस के साथ में, ये मॉल में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब क्या है, मार्केटिंग का पार्ट है। ये चला गया फंक्शनल। बोलो। सर मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, मतलब मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मार्केटिंग सब एक ही, सेल्स मार्केटिंग सब एक ही, ठीक है? अरे मार्केट क्या मार्केट करोगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेचोगे तो सेल्स हो गया ना। अब कैसे बेचना है, क्या प्लान प्रोग्राम करना है, कोई बोलता है सर मार्केटिंग और सेल्स सेम नहीं है, एक नहीं है, अलग है, दोनों का फिर concept मेरा अलग है। करना वो, अब आप कितना डिवीजन करते हो। बहुत जगह एडवर्टाइजमेंट का डिवीजन अलग कर दिया, उसका काम है खाली एडवर्टाइज करो, उसका काम खाली ऐड बनाओ, ऐड करो, ऐड बनाओ, ऐड करो। उसको एक टारगेट दे दिया, इसके अंदर करना है, पॉसिबल? उसका काम ही ऐड करना है। अब क्या होता है, उसके अंदर में कुछ लिमिटेशंस होता है, टर्म्स कंडीशन होता है, तो एक एक पार्ट बना दिया जाता है। रिक्वायरमेंट आता है, कब ऐड देना है, कैसे करना है। फाइनली सबका कंट्रोल कॉर्पोरेट लेवल में, सबका कंट्रोल, क्योंकि डेटा नीचे से जाता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ डेटा जाता है, डायरेक्शन ऊपर से नीचे आएगा, डेटा मूवमेंट नीचे से ऊपर जाएगा। जो फाइनल बैलेंस शीट पीएल बनता है
सब आ जाता है उसमें हम्म। तब, राइट। सर ये जो फाइनल क्लियर बैलेंस शीट बनाते हैं ये के डिवीजन के ऊपर बना पूरा बिजनेस सब डिवीजन का बनेगा, लास्ट में हर डिवीजन को ऐड करके एक बनेगा। जितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, टाटा हो, बिरला हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, फाइनली एक बैलेंस शीट होता है ना। सपोज सेल बोला 22,000 करोड़ रुपया, 22,000 करोड़ आया कैसे? सब कंबाइंड है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है मालूम है? प्रैक्टिकल लाइफ में when you go for audit for big organization, when you go for audit for big organization and if you have done the audit properly, you will know everything. You will know एकदम full 100%। समझ गए? सर सर ये टाटा जिसका ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है सर इसको ऑडिटर का एक डिवीजन के ऊपर फिर गड़बड़। फाइनल बैलेंस शीट एक सिंगल ऑडिट हो सकता है, जॉइंट ऑडिटर हो सकता है, ठीक है। फिर ब्रांच ऑडिटर हो सकता है, स्टॉक ऑडिटर हो सकता है, स्टॉक ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर, रेवेन्यू ऑडिटर, फाइनली स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या होता है फाइनली? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को पावर है वो हर चीज, ब्रांच ऑडिटर को पावर है ब्रांच तक। आपको किसी ब्रांच का ऑडिटर बनाया तो आप क्या करोगे? ब्रांच का ऑडिट करो। आप बोले दूसरे ब्रांच का, बोला नहीं, आप उसको तो अलाउ नहीं है। चलो वापस। तो एनीवे, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ठीक है। मीनिंग क्लियर? अगेन divisions, subdivisions, strategic business unit, strategic business ठीक है। See, subdivision, strategic business unit. So strategic business unit, when we are talking, it is itself complete in all respect. स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए एक बिजनेस यूनिट बना दिया। डिसीजंस आर टेकन एट डिफरेंट लेवल। चलो बैंकिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। ऑल इंडिया सपोज 2000 ब्रांचेस, पॉसिबल? सो 2000 ब्रांचेस या 5000 ब्रांचेस, तो all 5000 not possible for them to take decision from one place. तो वो क्या करेगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल करके बना देगा, साथ में पावर दे देगा एक। फिर रीजनल मैनेजर, पॉसिबल? आप सुनते हो ना, रीजनल मैनेजर है, डिविजनल मैनेजर है, ठीक है, एरिया मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, कहीं जरूरत हुआ उसको चीफ मैनेजर बना दिया। बहुत जगह पता चला एक मैनेजर से काम नहीं होगा, दो लगेगा, तो एक को चीफ बना दिया, एक को ब्रांच बना दिया, दोनों को अगल बगल रूम में बैठा दिया। चीफ मैनेजर अंदर वाला रूम में चला गया,
ब्रांच मैनेजर को सामने कर दिया। अगेन इंटरेस्टिंग, हम लोग का फिर इसके लिए कोई लॉ नहीं है, देयर इज नो लॉ। आपका बिजनेस है, आप जैसे मन करो, पॉसिबल। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वही परचेस करता है, वही सेल करता है, सब काम खुद ही करता है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो गया, सेल्स मैनेजर अलग हो गया, परचेज मैनेजर अलग हो गया, पॉसिबल। प्रोडक्शन मैनेजर अलग हो गया, फाइनेंस मैनेजर अलग हो गया। सो व्हेन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड्स, न्यू पोस्ट है, ठीक है। नाउ एज डिस्कस्ड डे 1, हम लोग क्या बोले थे, ये टॉपिक ऐसा है, डे 1 का डिस्कशन और लास्ट डे का डिस्कशन लगेगा एक ही तरह का चल रहा है। समझे? ये टॉपिक क्या है, आपको क्वेश्चन समझ के उस लाइन में आंसर देना है। क्वेश्चन समझ के उस लाइन में आंसर, ठीक है। अगेन Sir, it was like 50 or 60%. 50-50 Adani Group, wide range of businesses. Adani Group, हाँ? Sir, Adani will not. तो एक प्रोडक्ट है उसका, ठीक है। तो अडानी ग्रुप अब क्या है, जैसे रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, ठीक है। अब एक ग्रुप का क्या चक्कर है, इसमें ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई, कंपनी एफ, ठीक है। मोर देन 50% शेयर, मोर देन शेयर होल्डिंग, समझ गए। ऑनर से, ऑनर, अब यहां पर ध्यान रखने का है कि ये मालिक कौन है। अब वो मालिक कंपनी है या पर्सन है। Sir, company मालिक, company का फिर से, अगर कंपनी मालिक है तो होल्डिंग सब्सिडायरी हो जाएगा, पर्सन मालिक का और अगर इंडिविजुअल मालिक है तो फिर नहीं होगा। इंडिविजुअल सर कैसे हो सकता है सर, कंपनी तो फिर से, कंपनी ए का इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, 6 लाख का मालिक आप हो, आप डायरेक्टर हो, डायरेक्टर नहीं हो लेकिन चलो 60% का मालिक आप हो, शेयर आपके पास है। और कंपनी बी का भी 60% का शेयर आपके पास है, मालिक आप हुए कि नहीं। आप क्या होल्डिंग कंपनी हो? अब नहीं, क्या होता है, सब होता है, हाँ, ठीक है। कंपनी ए बी सी डी, समझ में आ रहा है। मालिक कौन है, हो सकता है 2-3 कंपनी का मालिक एक और कंपनी, उस कंपनी का मालिक फिर आप हो, पॉसिबल। कंट्रोल इन योर हैंड, कंट्रोल, ठीक है, हो गया। ग्रुप का मतलब क्या है, तो सब मिला के हम लोग हैं,
वो मेरे अंडर में। ठीक है, तो ये जो है ये एक दो नहीं, ये सब कॉमन चीज है। ये क्या होता है, ग्रुप कंपनी। आजकल क्या है, बहुत बिल्डर लोग बहुत सा बिल्डिंग बना रहा है। मान लो 25 जगह बिल्डिंग बनाया, तो क्या किया, 25 कंपनी बनाया। कितना कंपनी, 25। और उस कंपनी का शेयर उसके पास है, कंपनी का शेयर। और जो आदमी है वो ग्रुप है, वो क्या है, उसके पीछे में वो लोग हैं, तो वो क्या हो गया, ग्रुप कंपनी। क्या बन गया, ऐसे ही चलता है ये सब काम, ऐसे ही चलता है। समझ गए, क्लियर। चल, ओके। से फाइनेंस, परचेजिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। पॉसिबल, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब होता है हाई टू लो, माने कारपोरेट लेवल, हेड ऑफिस। बॉटम अप में क्या होता है, डिसीजन, एकदम टॉप में नहीं हो रहा है, उसके नीचे में वो लोग को फ्रीडम दे दिया, वो लोग को फ्रीडम दे दिया, यू टेक डिसीजन। कौन से डिपार्टमेंट? मतलब जैसे मान लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, बोला ईस्ट का डिसीजन ईस्टर्न रीजन का हेड लेगा। कॉर्पोरेट अलग है, सपोज दिल्ली में कॉर्पोरेट है, लेकिन डिसीजन क्या किया, छोड़ दिया, ऊपर से नहीं आया, नीचे बीच से, वहां से डिसीजन लेके अपना डिसीजन पास कर। ये क्या हो गया, बॉटम अप, बीच से ऊपर। अब बीच का मतलब नहीं है कि एकदम सेंटर में रहेगा, नीचे से ऊपर, दैट इज नोन एज बॉटम अप। टॉप डाउन मतलब एकदम टॉप में डिसीजन लिया, वहां से डिसीजन नीचे आया। बॉटम अप में बीच से नीचे से ऊपर की तरफ डिसीजन। व्हाट इज मेन, डिसीजन। नाउ नेक्स्ट, network of relationship between
the three levels. Now, ये जो टॉपिक है ना हम लोग का, ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है कोई भी बिजनेसमैन के साथ डिस्कस करोगे वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी, समझ गए? नाउ एजुकेटेड बिजनेसमैन एंड वन इज बिजनेसमैन, दोनों में अंतर है. So India part, one is traditional uneducated but doing big business. Now another is educated doing business, big business. When you move from low business to high business, knowledge is must. जैसे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो नॉलेज होना चाहिए ना. तो नॉलेज भी दो तरह का होता है, काम का नॉलेज और एक होता है सब नॉलेज, ऑल. बहुत लोग बिजनेस है लेकिन फॉर्म भरना है, बोला हमको तो फॉर्म भरना नहीं है. पॉसिबल? डूइंग बिजनेस, इसका मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है, बट डूइंग बिजनेस, टेकिंग हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, फॉर्म भर दो. इवन यू नो बैंक में पैसा जमा करना है, निकालना है, तो फॉर्म कोई मिल जाता है, बोलता है जमा करना, अपना अकाउंट नंबर डाल दिया, बोला जाकर जमा कर दो, स्टैम्प मार के घर. पॉसिबल? पॉसिबल है ना सब? कितना ऐसा है वो पहले से फॉर्म भर के छोड़ देता है, कुछ आएगा कोई बेवकूफ भर के इसी में जमा कर देगा. अंदर में बोला भोराच, बोला हाँ भोराच, जमा कर दिया. इंडिया है, यहाँ सब कुछ होता है. विलेज ब्रांच में क्या होता है मालूम है? मैनेजर वही फॉर्म भरता है, वही देता है, वही लेता है, सब वही काम करता है. समझे? पेंशन फंड सब आजकल तो स्कीम है ना बहुत सा. आजकल 1 तारीख हुआ ना, काम छोड़ के बैंक के बाहर में जाके बैठ जाता है. समझे? आज इसका पैसा मिलेगा, कल उसका पैसा मिलेगा. अब मैनेजर का काम कुछ नहीं, यही काम है. समझ गए? तो ऐसे ही चलता है. चलो कोई बात नहीं. तो बोलो. छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है. So network of relation between the 3 levels. Write down. Functional and divisional relationship. Horizontal relationship. मैट्रिक्स रिलेशनशिप. मैट्रिक्स, ठीक है ना. ये क्या होता है? व्हेन बिग ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है तो आपको कोई डिस्कस करना है, कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है, आप किससे कंसल्ट करो? मान लो रिलायंस में आप काम करते हो तो बोले सीधे मुकेश अंबानी को फोन लगाओ, ऐसा तो नहीं होता है.
आजकल क्या सिस्टम है मालूम है? वो लोग जो फोन रखता है उसमें बहुत लिमिटेड रहता है। क्या? खाली रिलेटिव्स लोग का रहेगा, प्लस टॉप बिजनेस हेड्स लोग का रहेगा, टॉप। बाकी किसी का कोई नंबर नहीं है, आप कांटेक्ट ही नहीं कर पाओ। एंड अननोन दे विल नॉट कॉल, पिकअप, अननोन दे विल नॉट। और वो नंबर भी सबके पास नहीं रहे, वो नंबर स्पेशल होता है, वो नंबर लगेगा नहीं। मैंने वो जिससे चाहेगा उसी से बात होगा, बाकी से नहीं। समझ गए? तो अब क्या है? फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। यहां टॉप नहीं आ रहा है। ये लोग का जो बॉस है बस वो कांटेक्ट कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। ठीक है? हॉरिजेंटल रिलेशनशिप बराबर का, वर्टिकल होता है नीचे से ऊपर। हॉरिजेंटल मतलब एक डिवीजन का हेड है, दूसरा डिवीजन का हेड है, ये लोग हॉरिजेंटल। मैट्रिक्स कोई कहीं भी, मैट्रिक्स में क्या होता है? ठीक है, दैट इज मैट्रिक्स रिलेशनशिप। समझ गए? द मैट्रिक्स रिलेशनशिप। मैट्रिक्स रिलेशनशिप में मतलब देखो, एस को बोलते हैं वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये हो गया। इसमें दो ही लाइन किए हैं, 6 कर लो, 8 कर लो, मैट्रिक्स। ओके, नाउ इसमें लिखिए corporate level decides what the business wants to achieve, while the business level draws ideas and plan to execute the same, which generally flow down to functional level to execute and achieve results. So corporate level, business level, functional level. कॉर्पोरेट लेवल टारगेट सेट करता है, ऑब्जेक्ट क्या है, करना क्या है, अचीव क्या है, वो मैसेज इंफॉर्मेशन बिजनेस लेवल को दे देता है। अब बिजनेस लेवल प्लान प्रोग्राम बनाएगा और उसको एग्जीक्यूट फंक्शनल लेवल के थ्रू करेगा। मीनिंग क्लियर? ओके, it works in this way.
चलो, फॉर एग्जाम्पल नाउ सपोज एक क्वेश्चन है, strategy is a game plan used for which of the following? A, to take market position. B, to attract and satisfy customers. C, to respond to dynamic and hostile environment. D, all of the above. So strategy is a game plan, and for which used for which of the following? To take market position, to attract the and satisfy customer, to respond to dynamic and hostile environment, all of the above. तो सही आंसर क्या होना चाहिए? सो स्ट्रैटेजी, बिजनेस सक्सेस करना है तो वट एवर स्टडीड, तो टेक मार्केट पोजीशन, तो सभी चाहेगा हाँ मार्केट पोजीशन होना चाहिए, ध्यान रखना है, तो राइट है। टू अट्रैक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आप सक्सेस कब होगा? जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा ना। सेटिस्फाइड होने से क्या होता है? रिपीटेशन। बिजनेस का एक क्वेश्चन है कि आपका जो कस्टमर आया उसमें रिपीट कस्टमर कितना है। ये सब आप जो बिजनेस में जो फंडिंग ये सब होता है ना, पिच, तो उसमें पूछता है आप जो बिजनेस कर रहा है, तो रिपीट का मतलब हो गया सेटिस्फाइड कस्टमर। अगर 60-70% आपका रिपीट कस्टमर है, इट मींस योर बिजनेस सक्सेस। ऐसा सोचो, आपका एक स्वीट शॉप है, कस्टमर आया नया फर्स्ट टाइम, वो बाद में फिर आया, इसका मतलब सेटिस्फाइड। आपका क्लोथ शॉप है, क्लोथ खरीद के ले गया, फिर आया। अब स्वीट शॉप में हर वीक आ गया, डेली आ गया, लेकिन क्लोथ शॉप में तो डेली डेली नहीं आएगा, ओकेशनली रिपीट होता है सक्सेस। लेकिन स्वीट शॉप में बोला साल में एक बार नजर आता है, तब तो क्वेश्चन मार्क है। तो हर चीज का एक इंटरप्रिटेशन। कार परचेज किया, 5 साल बाद फिर आया, दिस इज रिपीट कस्टमर। आई थिंक गॉट इट? Yes, sir. So satisfy customers, respond to dynamic and hostile environment. Environment is changing, Business will approach it, change the environment. तो आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होगा, करना होगा। ठीक है, सो आंसर डी, B, all of the above. ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, Yes. सो अगेन विल कंटिन्यू। ओके,